चवर छतर तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत चवर छतर तख्त दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठे गुरु रूप गुरु सवारी सत संगी जनों, अज दा ये विशेष गुरमत दीवान गुरमत समागम अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार रहमत बख्शिश की है। सेवक परिवार छोटे वीर भाई मालक सिंह समूह परिवार सतगुरु जी ने रहमत बख्शिश करके इस नवे ग्रह की दात बख्शिश की है। कोटान कोट शुक्र करदियां अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सेवक परिवार ने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरण और आप सरबत संगत के चरण अपने गृह विखे पवाए ने। सतगुरां दे हजूर गुरमत दीवान सजिया सजे हुए दीवाना विच तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सतगुरां दी इलाही बाणी तुरकी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की पावन पवित्र गुरबाणी के पाठ उपरंत मेरे आजीज वीर करमजीत सिंह हजूरी कथावाचक श्री सुखमनी साहिब गुरुद्वारा साहिब सैक्टर 7 विखे तिन्हां ने आप सरबत संगत नूं गुरमत विचारां गुर शब्द विचार के नाल जोड़िया है। और आओ थोड़ा जिहा समा हो रल मिल के केवल 15 को मिनट
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸੁਣ ਲਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਤਨੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਉੱਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28 ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। LED ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
पर घर बनाउण वेले ऐसे किन्ने कु गुरसिख ने जिहड़े ये सोचते ने कि साडे घरां दे विच साडी अमृत बाणी भी आउणी चाहिए। गुरु साहिब ने अमृत बाणी दे विच ये उपदेश भी कीता कि उच्चे महिला नूं घर नहीं कहा जांदा कि जितना मर्जी कोई उच्चा घर पा लै। जिवें हुणे ही आपां ने सरवण कीता सी कबीर जेकर साध ना सेवीए, कि जिस घर दे विच गुरु नूं कदे याद ही नहीं कीता जांदा, हर की पूजा ना जिहदे विच हरि की पूजा ही नहीं, परमात्मा नूं याद ही नहीं कीता जांदा। और गुरु साहिबान बाणी विच कहंदे ने चेता रखियो उन्हां नूं घर नहीं आखिया जांदा। घर वो हुंदे ने जिन्हां दे विच अकाल पुरख परमात्मा दी सिफत तो सलाह कीती जाती है। बेनती कर रहा सा अज साडे घरां दे विच खास तौर ते जिहड़ियां साडीआं भैणां ने, मातावां ने, बीबियां ने घरां विच वो आप अमृत गुरबाणी नहीं पढ़दियां। और जिन्ने भी साडे घरां दे विच रहण वाले सज्जन ने वो बाणी नहीं पढ़दे। पर गुरु साहिबान ने बचन किया भी हर एक गुरसिख अमृत गुरबाणी नूं पढ़े, अमृत गुरबाणी दी विचार करे। ते जिस घर दे विच बाणी गाई जाती है सतगुरु बाणी विच बख्शिश करते ने, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल कोई मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। इस अमृत बाणी नूं जेड़ा भी पढ़ेगा सुनेगा ना, जलन दा अर्थ हुंदा कई बारी बंदा ना अंदरों सड़दा है। ख्याल करियो सड़दा पता किवें में, हर बंदे दे मन दे विच ईर्खा द्वेष। जदों अमृत बाणी नूं असीं पढ़ांगे, बाणी सानूं ये बचन करदी है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आया। बाणी ने अंदरों ये ईर्खालू बिरतियां दूर कर दियां ने। गुरु नानक साहब बेनती कर रहा सा, ये अमृत बाणी उस मालिक दी अकाल पुरख दी है। किधरे भी गुरु साहिबान ने, भगतां ने, गुरसिखा ने, भट्टां ने ये नहीं कहा भी ये बाणी साडी है। उत्तम श्लोक साध के बचन, ये मेरे गुरु दे, ये परमात्मा दे बचन ने। गुरु नानक साहब ने भाई लालो दे घर दे विच ना सवेरे शाम गुरबाणी का कीर्तन करना, और भाई लालो ने बैठ के सुनना बड़े ध्यान दे नाल। ते जेड़ा भी गुरबाणी नूं सुनदा है ना बैठ के ध्यान दे नाल, ओदे मन विच गुरबाणी आके वसदी। भाई लालो ने एक दिन गुरु नानक साहब जी नूं पुछ लिया कि सच्चे पातशाह ये मैनूं दसो, जो तुसीं अमृत वेले पढ़दे हो, शाम नूं पढ़दे हो, ये तुहाडी कोई अपनी कविता है जां अपना कोई तुहाडा लिखिया होया लेख है? हर बंदा अपनी कविता गाउंदा है, हर बंदा अपना लिखिया होया लेख पढ़दा है। और गुरु नानक साहब कहंदे ने भाई लालो भी क्यों, ये क्यों सवाल कीता? कहन लगे भी सच्चे पातशाह जदों मैं तुहाडे कोल बैठ के ये अमृत बचनां नूं सुनना वा, मेरे अंदर सुकून, मेरे अंदर ठंड पैंदी है, मैनूं आत्मक आनंद मिलदा है। इस करके गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी बाणी विच कहा ना, बेनती छोटी जी कर लगा। गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु बनने तो पहला 62 साल तक उन्हां दे कोल सोहणे घर भी सन, उन्हां दे अपने 4 भैन भरा भी ने, और सारा कुछ कारोबार ठीक सी, मालिक दी कृपा सी। पर जिस दिन गुरु अंगद साहब जी दी शरण विच आए, जिस दिन गुरु अंगद साहब जी ने कृपा की, उन्होंने दुनिया के लोगों को दस दिता सी, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। कि हे मेरी मां, भी मेरी जिंदगी विच आनंद उस दिन आया है जिस दिन मैं अपने गुरु नूं पा लिया है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। मैनू आनंद गुरु तो मिलिया, बाहरों नहीं, बाहर चीज़ों तो आनंद नहीं मिलता। ख्याल रखियो,
जिथे मर्जी भी बंदा घूम के आ जाए, जे आके मेरी जिंदगी विच आनंद है, आनंद नहीं, आनंद गुरु नाल जुड़ के आउंदा है, बाणी नूं पढ़ के आउंदा है। और गुरु अमरदास पातशाह जी ने 62 साल तो बाद सतगुरां दे चरनां नाल जुड़े 11 साल उन्होंने सेवा की और सतगुरु जी के चरनां नाल जुड़े उन्होंने दुनिया नूं समझाया कि बाणी तो आनंद मिलना है। और बाणी ते जोर गुरु अमरदास पातशाह जी ने दिता कि हे गुरसिख भाई बाणी पढ़। भाई लालो कहंदा सच्चे पातशाह मेरी जिंदगी विच ना आत्मक आनंद आउंदा है, ये दसो भी ये की है जो तुसी पढ़दे हो, जो तुसी गाउंदे जे, जिदा तुसी सच्चे पातशाह कीर्तन करदे हो। गुरु नानक साहब कहंदे ने भाई लालो ये कोई मेरी अपनी कविता नहीं, मेरा कोई अपना लिखिया लेख नहीं। सच्चे पातशाह जी की है सब कहंदे ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बेला लो। कि भाई लालो जिवें भी खसम का अर्थ है मालिक, परमात्मा परमेश्वर पति, जिवें मैनू मालिक का हुक्म आउंदा उस तरह मैं गाउंदा हाँ। ये कोई मेरी अपनी कविता अपना लिखिया लेख नहीं, उत्तम सलोक साध के वचन। हुणे सुखमनी साहब जी की बाणी में सरवण किया, बेअंत उदाहरण आपां इतिहास विचों लै सकते हाँ। साहब ने वचन किया उत्तम सलोक साध का इत्थे अर्थ है गुरु, मेरे गुरु दे अपने वचन ने। और ख्याल करियो गुरु साहबाना ने आप बाणी उच्चारण की है और होर सतगुरां ने कृपा की, आप सतगुरु जी ने बाणी लिखी। उत्तम श्लोक साध के वचन और सब कहते ने अमोलीक लाल ए रतन। अमोलीक का अर्थ होंदा है अमोलक, जिस बाणी का कोई मुल ही ना पा सके। उदाहरण वजों सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी का कई बारी असी कह देना, देखो जी मैं ते अखंड पाठ साहिब रखवाया सी, मैं ते इन्नी माया दी है, मैं कीर्तन की इन्नी माया दी है। पर ख्याल करियो गुरु साहबान ने अपना आप वार के भी क्या मैं सतगुरु तेरा कोई दे नहीं दे सकता। साहिबा की पावन बाणी पढ़ो। सब कहते ने तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै। कि जेड़ा मैनू मेरे मालिक दा कोई एक वचन कोई तुक भी सुनाए, मैं उसनू की भेटा देवां, मैं उहदे अगे किहड़ी चीज रखां, इहदा ते कोई मुल नहीं। ते साहिब जी बख्शिश करते ने सीस वडे कर बैसन दीजै बिन सिर सेव करीजै। जे मैं अपना सीस ला के उहदे बैठन वास्ते आसन भी बना दियां वो भी घट है, इस बाणी का कोई मुल नहीं। गुरु अर्जन साहब जी आप वचन करते ने कोई जाना हर स्यों देवै जोर चरण गाहों बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। इस बाणी का कोई मुल नहीं, बाणी अमोलक है, हर आप अमोलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए। किसे बिटों रहे लोग बिरलाए, गुरबाणी अमोलक के, रब नूं कोई मुल नहीं खरीद सकता। ख्याल करियो जे रब नूं कोई मुल खरीद सकता हुंदा ते गरीब दे घर गुरु नानक साहब अकाल पुरख परमात्मा कदे नहीं समझाते। जिथे गरीबी है, गरीबी का मतलब ये नहीं कि आर्थिक पक्ष तो असीं कमजोर होइए। भगत रविदास जी वचन करते ने खामसर दीन दयाल ना तुम सर। मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं, वाहिगुरु जी तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। भाव के सब कुछ हुंदियां गुरसिख ये कदे ना आखे भी मेरे कोल इन्ना कुछ है नहीं, दिता सब कुछ मालिक दा, मेरे विच कोई ताकत नहीं, मैं निर्गुणियारे को नहीं। अरदास आपां रोजाना करते हाँ, तुद आगे अरदास हमारी
जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। अमलीक लाल ਇਹ रतन गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ कीमती तो कीमती रतन ने। जिमें भाई गुरदास साहब जी ने बचन किया है कि सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, केवल 5 मिनट में होर समा लाना है। भाई गुरदास साहब जी का एक बित होता है, भाई गुरदास साहब जी बख्शिश करते हैं, जिमें साहब ने कहना गुरबाणी दे विच कीमती रतन ने, ते रत्नां दा रतन प्राप्त किवें होणगे। हुण जे असीं कहिए भी असी गुरुद्वारा साहब गए, मत्था टेकिया, मत्था टेक के मैं आ गया वापस, वो तो इंज हो जाता है जिवें भाई साहब जी कहते ने कोई बंदा समुंदर ते जाए ते समुंदर के कंढे तो हो के आ जाए, भी वेख के चाह के वापस परत आए। वो बंदे की हालात है जिहड़ा बंदा गुरु कोल जाके मत्था टेक के वापस परत आए पर कुछ लैके ना आए। भाई साहब जी कहते ने जैसे तो सकल नित पूर्ण समुंदर विखे हंस मर जीवा, निश्चय प्रसाद पावे। जिवें समुंदर दे विच सारे पदार्थ ने पर उन्हां रत्नां नूं प्राप्त कौन करदा है? भाई साहब जी बख्शिश करते ने, कृपा करते ने, प्राप्त करता है एक हंस। वो चुप्पी लांदा, डूंघाई में जाता है, वो कीमती रत्नां दा मालक बनता है। इस तरह साहिबां दी बाणी जेड़ा पढ़ेगा, गुरबाणी की विचार करेगा, इन्हां रत्नां दा वो मालक बनेगा। भाई साहब जी अगे बख्शिश करते ने जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खनवारा खन जग विखे प्रगटावे। जिवें वड्डे वड्डे पर्वत ने उन्हां दे विच कीमती तो कीमती सोना है, रतन है, पर एक खोजी बंदा खोज के संसार दे सामने रखदा है। तीजी उदाहरण भाई साहब जी देंदे ने जैसे बन विखे मलियागर सोधा कबूर, सोध कै सुबासी सुबास बैसावे। जिवें एक आपां कह लईए भी पार्क दे विच जिथे चंगे चंगे फुल लगे ने उन्हां दे विच खुशबू है, पर वो खुशबू कढ़न वाला वो खुशबू लैके उन्हां दा निचोड़ कढ़ के संसार दे सानू रखदा है। इस तरह भाई साहब कहते ने तैसे गुरबाणी विखे सगल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई ने जावे। भी जेड़ा गुरबाणी में सारे पदार्थ ने इन्हां दे विचों जेड़ा खोजेगा खोजी बनेगा, इन्हां रत्नां दा मालक बनेगा। ये रतन सतगुरु जी ने साहब ने सानू बख्शिश कीते ने। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा माना भया निदाना। अज असी गुरबाणी आप नहीं पढ़ते, गुरबाणी की विचार आप नहीं करते। साहब जी बख्शिश करते ने अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक है निस्तार। के जेड़ा गुरबाणी नूं सुनेगा, सुन के जेड़ा बाणी नूं कमाएगा, कमाई दा अर्थ हुंदा भी जेड़ा गुरबाणी दे मुताबिक जिंदगी जीवेगा, इहनूं कहंदे ने कमाई करनी। जो गुरु कहता है, गुरु दे बचना ते पहरा देना, गुरु दे दसे मार्ग ते चलना, जो कुछ पातशाह जी बख्शिश करते ने सब कहते ने ये भी गुरबाणी की कमाई करनी। जो गुरु साहबान कहते ने सुनत कमावत होत उदार, आप तरह वो आप भी तरदा है, भाव के अपना जीवन चंगा बनाउंदा है ते दूजियां वास्ते वो मार्गदर्शी बन जाता है, दूजियां वास्ते वो पूरने पांदा है। आप तरह लोका निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग। वो आप उतरता है भाव के अपने जीवन दियां सारियां मुरादां पूरियां कर लेंदा है, उहदा जीवन सफल बनता है, उहदा संगत करन वाले भी तर जाते ने। ते सब कहते हैं जिहदे मन विच इत्थे रंग दा अर्थ परमात्मा दे प्रति प्यार स्नेह, जिन्हों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बचन किया है, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। परमात्मा
साडे प्यार दा भुखा है, वो पैसे दा भुखा नहीं। ख्याल रखियो, गोबिंद भाओ भगत का भुखा वो साडे प्यार दा भुखा है। ते साहिब जी बचन करते ने, जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे। जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द, पूरी जिंदगी में जय जयकार हुंदी है। भाव के जेड़ा गुरबाणी पढ़दा है ना, ख्याल करियो वो कदे ढैंदी कला विच नहीं आउंदा। जेड़ा गुरसिख बाणी पढ़न वाला है, बाणी दे नाल जुड़िया है, परमात्मा दे भगती नाल जुड़िया है, ओदी जिंदगी विच कदे ढैंदी कला नहीं, ओदी जिंदगी में जय जयकार होवेगी। भाव के हर वक्त उहदे जीवन में चढ़ती कला, जय जय शब्द नाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। वो सुन के आनंद प्राप्त करता है। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, ऐसे करनी वाले मनुख दे गुरसिख दे जीवन दे विच परमात्मा परमेश्वर आप हाजिर हुंदा है। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन के साथे। नानक गुरु गुरु अर्जन साहिब जी सुखमनी साहिब जी की बाणी विच बचन करते ने, ऐसे सज्जनां दी संगत करन वाला भी तर जांदा है। इस करके किसी भी मुकाम ते पहुंचण वास्ते उहदे वास्ते मेहनत करन दी लोड़ हुंदी है। जेड़ा बंदा मेहनती है, कीर्ति है, मालक फिर उसनूं भाग लाउंदा है। उहदे ते सतगुरु जी बख्शिशां करदे ने। और ख्याल करना बिना मेहनत तो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का उपदेश है, उद्यम करेंदियां जियो तू कि हे गुरसिख उद्यम कर। जे आपां चाहुंदे हां मेरा घर सोहना बने, ते जे आपां घर दे विच बैठ के कह दईए जी घर बन जाएगा, घर इदां नहीं बनदे, घर मेहनत ना बनदे। उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावंदियां सुख पुंज, ध्याएंदियां ते प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। साहिब जी बख्शिश करदे ने, उद्यम आप करना है, कृपा उस परमेश्वर ने अकाल पुरख ने करनी है। साहिब जी ने कृपा की, मेरे मन विच बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी खुशी है कि साडे सत्कारयोग मानयोग स्वर्गवासी फुफड़ जी सरदार कृपाल सिंह जी के जिन्हां दे नाल मेरा बड़ा स्नेह सी, प्यार सी, मालिक ने अकाल पुरख ने बख्शिश की है कि अज उहदे बनाई कोई जगह में मालिक ने भाग लाए ने। और इस तरह सतगुरु जी बख्शिश करन, कृपा करन, रहमत करन, होर भी चढ़ती कला विच सतगुरु परिवार दा बख्शिश करे। भुल्लां चुकां खिमा, प्यार अदब सत्कार दे नाल आप जी फतेह बुलाओ और गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।